नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। And why is my voice echoing anyway? I hope you guys are able to correct it. दोनों प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Sir, but the Waqf board things just seems to be getting hotter and hotter and hotter, Yes. and more skeletons seem to be rolling out of Rolling everybody's out. cupboards. Now, the point is, irrespective of whatever be the intent of the BJP, I mean, at the end of the day, the Waqf board members per se or trustees have a lot of explaining to do. After all, you can't just claim just about anything and claim that that's your property and so on and so forth. I mean, I would love it if you know, we have a very distinguished panel of guests today. I would love it if some of them were to at least comment on what has taken place with regard to our own Minara Masjid. It is one of the iconic spots of Mumbai. Mumbai की जो मीनारा मस्जिद है वो एक आइकॉनिक है मस्जिद मोहम्मद अली रोड पे, is run by a trust and the Waqf board claim that Minara Masjid it's property. I mean, come on. और वो कैसे हुआ प्रदीप जी? वो तो क्या है कि माडा ने वो पीछे मीनारा मस्जिद के पीछे कोई 80 के 88 लोग रहते हैं वहाँ पे, मुसलमान बेचारे बहुत गरीब हैं. इट्स लाइक टेरिबल. देयर 88 पीपल, देयर इज ओनली वन टॉयलेट फॉर अबाउट 88 फैमिलीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो माडा ने एक रिहैब स्कीम के तहत उनको कहा कि आप हर एक को 400 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट मिल जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बेसिकली मोर और लेस लाइक एन एसआरए स्कीम बट अंडर माडा. वक्फ बोर्ड आ गया जी बीच में. उन्होंने कहा कि साहब इनको सबको वहां से बेदखल कीजिए, घर से बाहर कीजिए, और केस कर दिया. दे ऑफ कोर्स एज यूजुअल द मीनारा मस्जिद ट्रस्ट लॉस्ट इन द ट्राइब्यूनल. दे वेंट टू द हाई कोर्ट. 15 मार्च को इस साल हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द मीनारा मस्जिद ट्रस्ट. एंड गेस व्हाट? द वक्फ बोर्ड हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट asking that all those 88 families from there should be evicted. They're poor Muslims. I mean, what are you doing? कर क्या रहे हैं आप लोग? अजीबो-गरीब मसला है ये, क्या है? तो as a result of it, what happens is you are opening the door for these kind of amendments to come through, which have already come through, by the way. अब तो खैर कानून बन गया है. It is only because you acted in this manner. Now you say it's for education, you say it's protection of healthcare, you say it's for social welfare. Now, protection and housing the Muslim families in Minara Masjid was a fundamental duty of the Waqf board. That's right. And if they have failed to do it, and if MADA has undertaken a task of providing them shelter, of course, with a sale component, which builder will do it for free? So then you have an objection. I mean, as you said, continuously these kind of activities has reduced their entire credibility. That's the whole point. Providing the ultimate purpose of life is concerned. Now, if the 32 Waqf boards all over the country had acted in a manner which was above board and in an honest manner, मतलब ईमानदारी से काम करते, बड़े जैसे काम करना चाहिए, खुदा यार आप खुदा का काम कर रहे हैं ना, आप अल्लाह का काम कर रहे हैं, वो अगर आप ईमानदारी से करते, बिल्कुल डिवोशन से करते, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता. लेकिन ये आपके सामने उदाहरण है प्रदीप जी. ये तो 15 मार्च का ऑर्डर बता रहा हूं मैं. yes. फुल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, 2 जज बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रूल्ड. ये क्या है? मतलब दिस इज in any event, I don't even know where to begin. This is like terrible. So as a result of it, you yourself are giving an opportunity to everybody else to come in and say, hey listen, some reforms are needed. That's it. और देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ कहा कि 2000 से लेकर 2014 तक जो भी व्यक्ति इस वक़्फ़ प्रॉपर्टीज का मिसयूज किया है, he will see the criminal cases are filed against them. I hope so. Now that kind of an action that has been promised by Fadnavis. Now if there has been any illegality, as always the good people within the waqf, within the community says, take action against them. So somebody has to stand up and take action against them. Nation now can claim credit for that. बिल्कुल सर. क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड करी थी. Yes. कि भैया हर जगह पे आप जरा ऑडिट कीजिए. कोई भी एक्शन अगर गलत हुआ है, आप कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड ने गलत एक्शन दिए, वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी के अंदर धांधली करी है, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने अपने अपने घर भर लिए. आप बोल रहे हैं ना ये.
ऑडिट कीजिए, लोगों के सामने ऑडिट रिपोर्ट रखिए कि यहां पर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आई वुड लव टू नो कि भाई असल में धांधली हुई है कि नहीं हुई है, वो अलग बात है, लेकिन you have to prove it also. Anyway, I think we've got a very distinguished panel of guests. I think we've got Mr. Sameer Bhakre of the BJP with us. Sameer Bhakre sahab, lovely to see you again. How are you, sir? Namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. And our friend Mr. Nasir Hussain. अरे नासिर हुसैन यार, he looks more and more handsome every time I meet him. ये क्या चक्कर है यार? अभी ये तो अब नासिर हुसैन तो हम लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं साहब, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। ये मतलब क्या है यार, आप सिर्फ सीधा फिल्म इंडस्ट्री में आओ, आप गलत प्रोफेशन में हो, आप मतलब क्या होने वाला है कांग्रेस में, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड मिस्टर प्रजापति, yesterday he was not able to join us, but today we are very glad he is with us. प्रजापति साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और प्रजापति साहब की जो रिसर्च है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द प्रजापति कम्युनिटी एंड ऑल द ओबीसीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्या बात है साहब, जबरदस्त, फैंटास्टिक। पीडीए में शायद पीएचडी ले लिया है। हाँ, इंस्टेड ऑफ पीडीए ही शुड बी कॉल्ड पीएचडी, मुझे ऐसा लग रहा है। जबरदस्त प्रजापति साहब। लेकिन प्रजापति साहब, सबसे पहले मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा, आपकी परमिशन हो तो मैं सीधा नासिर साहब के पास जाता हूं। नासिर साहब, पार्लियामेंट में डिबेट हुई इस पे वक्फ बोर्ड के अलग अलग अमेंडमेंट्स को लेकर के, और बहुत अच्छी डिबेट हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज एन एक्चुअली ये डिबेट, हर एक को बोलने का मौका मिला, किसी को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया। अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं। एक सवाल तो ये है कि जो कांग्रेस ने और अन्य विपक्ष ने जो सामने आर्ग्यूमेंट्स रखी, क्या आप बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप उनसे सेटिस्फाइड हैं जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखी? नंबर वन। नंबर टू, जैसा प्रदीप जी बार बार पूछते हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कुछ बोला नहीं, इसमें डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। अब आप बोले नासिर साहब, प्लीज गो अहेड। आपने बड़े अहम मुद्दे पे आज ये सब्जेक्ट रखा है। हिंदुस्तान की आवाम और तमाम मजहब के लोग आपको देख रहे होंगे, ये काफी अहम मामला है। ये किसी कौम से या कम्युनिटी की बात नहीं है, एक वक्फ बोर्ड की बात नहीं। आज जो हो रहा है ये तमाम उन मजहब को भी देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। एक तो संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के ऊपर ही ये हमला है। आर्टिकल 14 पे हमला करते हैं, आर्टिकल 26 पे हमला करते हैं, 29, 30 सब पे हमला है। जब संविधान विरोधी काम हो रहा है तो हम देश की दूसरी सबसे पार्टी खामोश नहीं हो सकते। इन्हें हम बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि असल मुद्दे से जब भटकाना हो तो एक मजहबी मुद्दा लाके उसे चमका देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश में और बिहार में लगभग 17-18 साल से सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है। वहाँ वह बोर्ड का चेयरमैन बैठा है। चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? वहाँ की सरकार कर रही है। ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कौन करता है? वहाँ की सरकार करती है। तमाम भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है तो वहाँ की सरकारें हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हो, वहाँ का चेयरमैन कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करती है, वहाँ की सरकारें नियुक्त करती है। जब वहाँ करप्शन हो रहा है तो करप्शन के खिलाफ बोल सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि पूरी कौम वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड ने क्या गुनाह किया है वो मैं जानना चाहता हूँ। इस बिल ने क्या गुनाह किया है वो जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस कौम पे हमला कर रही है, उस कौम को बदनाम कर रही है, एक मजहबी लोगों को बदनाम करके उनके हक और हकूक को छीनना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो अगर वो समानता की बात करते हैं तो उन्हीं मजहबों के लेकर आते मंदिरों के लिए, लेकर आते गुरुद्वारा के लिए, लेकर आते क्रिश्चियनिटी के लिए, तमाम मजहब के लिए अगर आप लेकर आते तो समझ में आता। मगर यहाँ क्या है, एक कौम पे हमला करना है, एक मजहब पे हमला करना है, उन्हें नफरत की राजनीति करना है। क्योंकि अभी चंद महीनों में इलेक्शन के राज्य आ रहे हैं। बिहार में उन्हें दिखाना है कि एक कौम को कैसे बदनाम किया जाए। कभी सीए लेके आएंगे, कभी एनआरसी लेके आएंगे, कभी यूसीसी लेके आएंगे। सिर्फ एक कौम को अटैक किया जाएगा तो देश की दूसरी पार्टी चुप नहीं रहेगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के नाते हम इनके चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। हम देश की क्या एपीसमेंट से आगे बढ़ना नहीं चाहिए? नासिर हुसैन साहब बार-बार आप पे कांग्रेस में मत बोलिए।
कांग्रेस का आरोप आप पर यही लगता है कि जहां भी आर्टिकल 370 हो, शाहबानो हो, ट्रिपल तलाक हो और अभी वक्फ रिफॉर्म्स हो जो देश हित में है, वहां आप एक कम्युनल कलर लेके आ रखे हैं, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी। एक मिनट प्रदीप भाई, आपने बोला देश हित में। हाँ, देश हित में। अभी क्या देश हित में है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी देश हित 370 देखो। अभी आप 370 की बात मत करें, अभी वक्फ बोर्ड की बात आपने की। अभी हम उस पे एक मुद्दे पे रहिए। बोलिए ना सर, बोलिए प्लीज। वक्फ बोर्ड के वो कहते हैं इससे पहले अदालत आप नहीं जा सकते थे, आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखते हैं, प्रदीप एडवोकेट। तो क्या रीट पेटिशन था या नहीं था? अदालत जाने का रास्ता था या नहीं था? ट्यूबनल हिंदुस्तान में कितने तरह के 20 तरह के ट्यूबनल चलते हैं। वो ट्यूबनल कौन बनाता है? एनजीटी चल रहा है, सीएटी चल रहा है, एसएटी चल रहा है, एरेरा चल रहा है। ये सारे ट्यूबनल बंद कर दीजिए। फिर जब ट्यूबनल पे आपको भरोसा नहीं है तो ट्यूबनलों का काम क्या है? ट्यूबनल को खत्म करिए। ट्यूबनल की नियुक्ति कौन करता है? कौन बनाता है नियुक्ति? कौन चलाता है उसको? मैं जानना चाहता हूं। यानी कि ये सरकार भ्रष्टाचार में है। उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, जहां भी है, जो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, जहां भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, कौन नियुक्त करता है? वहां के लोग, वहां की सरकारें नियुक्त करती है। आप सिर्फ एक टारगेटेड मुद्दा है। जब आप बेरोजगारी पे आपको बोलने को कुछ नहीं होगा, नौजवानों के लिए कुछ बोलने के काम नहीं होगा, किसानों के लिए कुछ बोलने को, तो ऐसे मुद्दों को ले जाओ, चाहे पूरा देश मजहब के रास्ते पे चले, एक नफरती सोच पैदा कर दो, समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट दो। मैं बार बार कहता हूं, ये नफरती राजनीति है, ये सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है, ये यूनाइट नहीं हो सकता। अगर वक्फ बोर्ड में कुछ खामियां है, आप मुसलमानों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खोला हो, माइनॉरिटी कॉलेज खोला हो, कोई उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया हो, कुछ उनके लिए भलाई किया? कहते 9 लाख एकड़ जमीन हिंदुस्तान में, तो कब्रिस्तान के जमीन को क्या बेच दोगे आप? जब क्या कब्रिस्तान के जमीन पे आप स्कूल कॉलेज खड़ा कर दोगे, मस्जिद को डिमोलाइज कर दोगे, जहां इमामबाड़ा और मॉस्क चल रहा है, मजारी चल, सबको तो खत्म कर दो? अरे कौन सी जमीन है जहां पे कब्जे? अगर 2 लाख एकड़ पे कहीं कब्जा है तो इसे इंक्रोचमेंट छोड़ाते, उसको डेवलपमेंट का रास्ता बताए। आपके पास क्या रोड मैप है कि आप? तो कहने का मतलब ये हुआ नाजर साहब, एक मिनट, बाकी सब ने भी तो बोलना है ना सर। तो नाजर साहब, आपके मुताबिक कहने का मतलब ये हुआ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी। जो 32 वक्फ बोर्ड हैं हिंदुस्तान में, अगर वहां पर कहीं बेईमानी हुई है, अगर वहां पर कहीं पर करप्शन हुई है, वहां पर कोई स्कैम हुआ है, तो हमारे जो अभी कानून हैं दे वर सफिशिएंट। उन कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। यही कह रहे हैं ना आप नासिर साहब? अगर करप्शन है, मैं करप्शन के मैं विरोधी हूं। करप्शन है, उसके आप गुनहगार हैं, उसको सजा दे। पर आज भी वही सजा देने वाले कौन लोग हैं? करप्शन पे करने वाले कौन है? उसको जमीन को कब्जा करने वाले। मैंने अभी कहा ना, 17 साल से बिहार में कौन है चेयरमैन? अगर करप्शन हो रहा है तो वहां भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, उन्हें जेल के सलाखों में होना चाहिए। चेयरमैन जेल के सलाखों में होना चाहिए, वही मेंबर जेल के सलाखों में होना। पर कौन है चेयरमैन? पर वहां नियुक्ति आप करते हो, पॉलिटिकल पोस्ट है सर। आप याद रखिए, चेयरमैन को बनाती वहां की सरकार है, ये सारे पॉलिटिकल पद हैं। आप ट्रिब्यूनल को लिए, वो भी वहां नियुक्ति सरकार करती है। सरकार के तो रीट पेटिशन था पहले। ये बार बार एक ही कहते कि अदालत नहीं जा सकते थे, अदालत सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, सिटी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे, दैट्स ऑल। सर अभी भी ट्रिब्यूनल के फैसले से हाई कोर्ट ही जाएंगे। वो कहते थे नहीं सर, मैं समझता हूं सर, मैं भी बड़ा इसको रिसर्च करने पे ही बोलता रहा हूं, ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं। मेरी आदत नहीं, अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी मैं हाथ जोड़ के तुरंत बोल दूंगा मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। मुझे पूरी तरीके से पता है सिविल कोर्ट नहीं जा सकते थे, पर हाई कोर्ट जाने का, ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट जाने का रास्ता था। ऐसा नहीं था, रीट पिटीशन करने का रास्ता नहीं था। मगर आप मजहबी चीज को क्यों जाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं? अब मैं कहता हूं ना, मंदिर के ट्रस्ट में आप मुसलमानों को डालेंगे क्या? नहीं डाल सकते वहां। अगर केरल में तो थे, सुन लीजिए अच्छी बात कहते, केरल में तो है, अगर अयप्पा टेम्पल में चेयरमैन मुसलमान हुआ करते थे सर। अयप्पा टेम्पल में The chairman was a Muslim for about 4 years. सर ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं है। कौन है अभी चेयरमैन बताइए? अभी नहीं है। कब की बात? नहीं, कब की बात कर रहे हैं? 5 साल पहले की बात है। नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, आज की बात करिए ना सर।
आज की बात करिए और यही मैं देखना चाहता हूं कौन बर्दाश्त कर सकता है। मैं अभी कहता हूं डीएम, अभी आपने कहा काशीनाथ मंदिर में अगर वहां पे अगर ट्रस्टी वहां डीएम आ जाए, कोई मुसलमान का डीएम बन सकता है। उसके नीचे के पद का अगर एसडीओ होगा वो हिंदू होगा वो बन सकता है, मुस्लिम डीएम होके भी नहीं बन सकता है, शासकीय पद होके भी वहां का चेयरमैन नहीं बन सकता है। जब वहां आईएएस ऑफिसर आ सकते हैं मंदिर ट्रस्टी में, अमित शाह जी ने क्लियर कट कहा कि देयर इज नो इंटरफेरेंस विद इन द वक्फ, there will be no interference, Muslim वक्फ ये जमीन सरकारी जमीन नहीं होगी। प्रदीप भाई आपने ये जमीन कोई आपने गवर्नमेंट ने नहीं दी है, यहाँ के मुसलमानों ने ही वो डोनेशन किया है, अपने पैसे से जमीन खरीदी हुई जमीन दिया है, कोई कब्जा करके जमीन नहीं दिया है, लोगों से लेके नहीं दिया है, अपनी जमीन खुशी से डोनेट किया है। कब्जा हुआ है नासिर हुसैन साहब, इसमें तो डिबेट हो गया, कब्जा हो गया सेक्शन 40 के माध्यम से पूरे गांव कब्जा हो गया। आज स्टेट में 515 प्रॉपर्टीज वक्फ ने कब्जा किया, जिसमें 123 प्रॉपर्टीज एएसआई के प्रॉपर्टीज है। एएसआई ने जो सर्टिफाई किया है ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स 132 पर कब्जा हुआ है। आप एएसआई बोल रहे हैं, पर एएसआई बताए वो कौन सी जगह कब्जा किया है? क्या एएसआई बताए कि पार्लियामेंट पूरे नहीं एएसआई बताए कौन कौन सा जगह कब्जा किया? और अगर जगह सुनिए ना बजाज भाई, अगर कब्जा किया तो उसको छुड़ाने के लिए एएसआई ने क्या किया? वो क्या रूल? अगर अंबानी सेक्शन 40 हटा दिया ना, सेक्शन 40 हटा दिया, क्या इटालिया गिरेगा? अंबानी का घर गिरेगा? वो भी तो वक्फ बोर्ड के जमीन पे है, उसका अभी भी हायरिंग चल रहा है ना औरंगाबाद में, ये तो आपको पता है। बट फडणवीस साहब ने बोला है कि जिसने भी करप्शन किया और 2000 से लेकर 2014 तक सब पे क्रिमिनल केस कहूंगा, ये सब तुम्हारे बोलते हैं ना फाइलों में गांव के रंग गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं, ये सब कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 2000 के बाद ये होगा वो होगा वो होगा, लेकिन नासिर साहब, आई हैव टू गो टू मिस्टर प्रजापति, आई विल कम बैक टू यू एंड वी विल गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको जबरदस्त जितना भी आपको बोलना है आपको जरूर, मैं मतलब आप मालूम है कैसा चैनल है ये, वी डोंट स्टॉप एनीबॉडी। नहीं, मैंने कभी आपको इंटरफेयर करता भी नहीं। जी, हम किसी को रोकते नहीं है सर, यहाँ पर जिसको जो बोलना है बोलिए। प्रजापति साहब जो बोलना है नहीं बोलिए, मगर जो फैक्ट हुआ मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, हैव आई सेड एनीथिंग? प्रजापति साहब अब आप बताएं सर। प्रजापति साहब, ये अभी बिल जो है वो पास हो गया, प्रेसिडेंट साहिबा ने इसके ऊपर साइन कर दिया, अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश पे सर? प्रजापति साहब आप बदायूं से हैं, अब आप बताएं वहां पर क्या माहौल क्या है वहां पे सर, प्लीज प्रजापति साहब। राजीव जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम हितैषी कह के कि ये मुस्लिमों के हित के लिए है, जिसके हित के लिए है उनसे ही पूछा नहीं भाई, मैं कोई अगर किसी से हितैषी बनना चाहता हूं तो कम से कम उसकी राय तो जानने की कोशिश करूंगा, उसके फायदे की तो सोचूंगा, उसके बारे में तो सोचूंगा। ये कितने मुस्लिमों के हितैषी हैं, मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। ये लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं पूरे भारत के अंदर जी, 543 में एक भी मुस्लिम को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये इतने हितैषी है। पूरे भारत के अंदर लगभग 2200 विधानसभा सीटें हैं, 2200 लगभग। उन 2200 विधानसभा में एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी भाई को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता। कितने हितैषी हैं? 750 जिला हैं लगभग पूरे भारत के अंदर। 750 में एक भी जिला अध्यक्ष इन्होंने अपनी पार्टी का मुस्लिम बनाया हो तो बताने का कष्ट करें। इसी प्रकार से लगभग 750 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। 750 जिला पंचायत अध्यक्ष, हर जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। एक भी 750 में जिला पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो तो बताओ। पूरे भारत में 1000 से ज्यादा ब्लॉक हैं, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है उसी के ब्लॉक प्रमुख होते हैं। 1000 में एक भी मुस्लिम बनाने का काम इन्होंने किया हो तो बताने का कष्ट करें। लगभग इस देश के अंदर 200 से 250 के बीच में महानगर पालिकाएं हैं, महापौर हैं, जहां मेयर चुने जाते हैं।
इन 200 से 250 में एक भी मेयर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम बनाने का काम किया हो तो बताए कि कितने मुस्लिम हितैषी। ठीक इसी प्रकार से हजारों की संख्या में नगर पालिकाएं हैं इस देश के अंदर, किसी भी नगर पालिका में इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया हो तो बताने का कष्ट करें। ये कितने हितैषी हैं मुस्लिमों के? मुस्लिमों के हितैषी का नहीं है, बल्कि अब बाबा जी का बुलडोजर, मुझे लगता है बाबा जी का बुलडोजर अब चलेगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट कितना भी मना करे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कितना भी फटकार लगाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आज ही आया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पीछे जो है एक जगह पर बुलडोजर चलाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर सरकार के लिए दिया गया था। तो मेरा मानना ये है एक जो योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और अब नफरत पर काम किया जाएगा, ये आने वाला समय देखें। बट योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मैं 3 साल में पॉवर्टी उत्तर प्रदेश में खत्म कर दूंगा, पॉवर्टी 0 हो जाएगा, 4 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश होगा। बट अखिलेश यादव जी उन पर चार्जेस लगा रहे कि हिटलर जैसे उनके पास खुफिया ट्रूप्स है, खुफिया लोग हैं, जो अंडरग्राउंड फोर्सेस हैं, जो उनके जो काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, जो यूपी के खिलाफ, इंटरेस्ट के खिलाफ है। बट इतने अच्छे अगर उनके इंटेंशंस है तो प्रॉब्लम कहां पर है? क्यों आप विरोध कर रहे हो? प्रजापति जी। प्रदीप जी, इस देश प्रदेश की स्थिति क्या बन गई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर ना जाने कितने इन्वेस्ट मीट हो चुके। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक इन्वेस्ट आया हो तो बताने का कष्ट करें माननीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार की स्थिति क्या हो गई है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इस प्रदेश के अंदर 11 महीने की संविदा की नौकरी मिलती है। उस 11 महीने की संविदा की नौकरी के लिए भी करप्शन, पैसा देना पड़ता है, तब संविदा की नौकरी मिलती है। रोजगार की स्थिति बुरी हो गई है, कोई शिक्षक भर्ती नहीं हो रही। 8 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 8 लाख। कोई लेखपाल की भर्ती कितने सालों से नहीं हुई। सर एक छोटी सी बात, सॉरी प्रजापति साहब, नहीं हुई। एक सेकंड सर व्यक्ति को सर बात रह जाएगी नहीं तो बताने का कष्ट, सर बात रह जाएगी। प्रजापति साहब एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, वो जो बार बार पेपर लीक्स की वजह से जो टीचर्स की भर्ती रह गई थी, को 12 बार पेपर लीक हुए जहां तक मैं जानता हूं, क्या अब वो भर्ती हो गई है सर? वो एंट्रेंस एग्जाम हो गए या अभी भी नहीं हुए? नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है 7 साल में। राजीव जी, लास्ट भर्ती 69,000 की हुई थी इनकी, लगभग 5-7 साल पहले वो भर्ती हुई थी। उस 69,000 भर्ती में 18,000 पद पिछड़ों के 18,000 पदों पर डकैती डालने का काम किया था और देश के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उस रिपोर्ट को सौंपा था और उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने माना। और लगभग 1 साल पहले, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले, सरकार ने ऑर्डर किया था कि इन 18,000 जो पिछड़ों के पदों पर डकैती डली है, इन 18,000 पदों पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन वही कहना है, संभल में 1 घंटे के अंदर जज फैसला सुना देता है, एक घंटे के अंदर कमेटी बन जाती है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 18,000 पदों में धांधली की बात करता है, उन्हें भरने की बात करता है, वो 1 साल तक नहीं होता। सर एक भी नहीं हुआ। लगातार बुलडोजर पर प्रहार कर रहा है कि बुलडोजर कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, उस पर रोक नहीं लगती। तो एक भी नहीं हुआ, एक भी पद नहीं भरा गया अभी तक। सॉरी, ये डाइवर्शन है, दिस इज नॉट द मेन फोकस, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज़ दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग सर, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी पर्सनली। This is terrible. 18,000 posts reserved for OBCs, Dalits, SCs and STs have still not been filled.
in spite of a Supreme Court order 1 year ago. Now that's it. आगे आप बोलें, प्रजापति जी बोलिए प्लीज। मैं पिछले लगभग 18 एग्जाम हो चुके हैं और अब तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगाया है कि ये जानबूझ करके अपने ही लोगों से पेपर आउट कराते हैं, जिससे कि भाई 1-2 पेपर आउट हो कोई बात नहीं है, 2-4 पेपर आउट हो जाए कोई बात नहीं है। पिछले उत्तर प्रदेश के 8 साल के शासनकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासनकाल में 17 परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं। यहां तक कि यूपी बोर्ड जैसी परीक्षा आउट हो चुकी है, यूनिवर्सिटी में तो बुरा हाल होता ही है। उन 18 परीक्षाओं के पेपर इसलिए आउट कराए जाते हैं जिससे कि लोगों को नौकरी, ये उत्तर पुलिस की एक भर्ती थी, आप लोगों को सबको पता होगा, 60 लाख लोगों के पेपर आउट होने का काम किया गया था। और देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से एग्जामिनेशन की समस्या को मैं बताना चाहता हूं। इस देश के अंदर बच्चा रहता है गोरखपुर है, उसका सेंटर सहारनपुर डाला जा रहा है, बच्चा रहता बागपत है, उसका सेंटर बलिया डाला जा रहा है, बच्चा रहता मेरठ है और उसका सेंटर देवरिया डाला जा रहा है। 1,000 2-2 हजार किलोमीटर बच्चों के सेंटर डाले जा रहे हैं। आप बताइए, कोई बच्चा 1000 किलोमीटर जाएगा तो वो 2000 रुपए जाने में और 2000 रुपए आने में 4 से 5 okay, fine. Sir, I'm so sorry for diverting. My apologies. Sir, my apologies to both my other guests. Sir, मैं क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं आपने बाकी दोनों गेस्ट से और प्रदीप जी से। ये this subject is very close to my heart, which is why I wanted to know from you, because you yourself are a professor, आप खुद प्रोफेसर हैं, आपको मतलब इसकी जानकारी बहुत है। तो वापस अगर वक्फ के ऊपर अगर वापस आए तो ये कहा जा रहा है कि आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड हैं हिंदुस्तान में, 32 के 32, वक्फ बोर्ड के अंदर एक भी शिया नहीं है, एक भी पिछड़ा हुआ मुसलमान नहीं है। जैसे कोई सलमानी नहीं है, कोई अंसारी नहीं है, कोई मोची नहीं है, कोई धोबी नहीं है, कोई जितनी पिछड़ी राइन नहीं है कोई, ये सारे सिर्फ सैयद, खान, शेख, सिद्दीकी, ये सब लोग हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर, कुछ मालूम है आपको? इस विषय के बारे में कुछ पता है सर आपको, प्रजापति साहब? देखिए, ये थोड़ा, मैं तो पहले ही कहता हूं, पिछड़ा ही है जी, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो और चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो। हिंदू कम्युनिटी में भी जिस तरीके से पिछड़ों के साथ, अगर धन्य है सावित्रीबाई फुले, अगर वो शायद घरों से नहीं निकली होती, 1 जनवरी 1848 को उन्होंने स्कूल नहीं खोला होता पुणे के अंदर, तो शायद उन्हें शायद महिलाओं की स्थिति क्या होती। और मैं 11 तारीख आ रही है उनका, 11 तारीख आ रही है उनका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर एक पिक्चर भी रिलीज हो रही है जिसका विरोध भी कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। विरोध करने वाले लोग सर, सच का विरोध होता है। मैं कहना चाहता हूँ, विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने, जब सावित्रीबाई पढ़ने के लिए निकली थी तो पंपलेट जिन्होंने लगाए थे कि ये धर्म विरोधी काम है। अरे सर, उनके पत्थर मारे गए, धर्म विरोधी काम था, उनके पत्थर मारे गए। के लिए, सूत्रों के लिए गुरुकुल में एंट्रेंस ही नहीं था। ये तो बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर का संविधान की बदौलत है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, सर फातिमा शेख को नहीं भूलना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिल रही है। अरे प्रजापति साहब, फातिमा शेख को नहीं भूलना चाहिए सर। ज्योतिबा फुले की जो फ्रेंड थी, बहुत अच्छी मित्र जो थी फातिमा शेख, उन्होंने अपना घर दिया था उनको स्कूल चलाने के लिए, उनको नहीं भूलना चाहिए। साथ में सबने काम किया था जी, दुरुस्त बात है प्रजापति साहब। मगर ये जो अपीसमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपके चार्जेस लगा दिए, आप राम मंदिर के विरोध करोगे, महाकुंभ के विरोध करोगे, मगर इफ्तार पार्टीज के आप सपोर्ट करोगे। तो हिंदुस्तान की पहली माइनॉरिटी टीचर भी वही थी, फातिमा शेख थी, करेक्ट, एब्सोल्युटली सर, एंड वी मस्ट सेलिब्रेट हर more than anybody else. Let's be very clear. She deserves a Bharat Ratna. अगर किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए, फातिमा शेख जी को मिलना चाहिए।
मैं मानता हूं जी। प्रजापति जी, मैं बता ना, हिंदुस्तान के इतिहास से दो लोगों को ऐसे गायब किया गया, एक शेख फातिमा को, दूसरी हजरत बेगम को। हजरत बेगम रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी जी, दुरुस्त, उनको खत्म कर दिया गया इतिहास। आई एग्री विद यू। जो अंग्रेजों के खिलाफ ताउम्र लड़ती रही जी, आई एग्री विद यू। कौन याद करता है? आई एग्री विद यू। हम याद करते हैं, प्रजापति हम याद करते हैं। प्रजापति साहब, ये जो अपीसमेंट के राजनीति है कब खत्म होगा? अखिलेश यादव जी का, योगी आदित्यनाथ जी का पूछना है आपको। प्रजापति साहब आपसे पूछा जा रहा है। राम मंदिर और कुंभ महाकुंभ को आलोचना करना और इफ्तार पार्टीज का तारीफ करना, योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, मुझे क्वेश्चन आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं आपसे पूछता हूं, मेरी आवाज आ रही है सर? प्रजापति जी जी, आपकी आ रही है। हाँ, अभी प्रदीप भाई की आवाज हम ठीक कर देते हैं। सर ऐसा है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला अखिलेश यादव जी के लिए ये कैसा यदुवंश में पैदा हो गया कि उसको गाय से बदबू आती है और बकरा कटने की खुशबू आती है। सर ऐसा बोला गया अखिलेश यादव जी के बारे में, और यह भी कहा गया कि राम मंदिर और महाकुंभ से उनको एलर्जी है, आलोचना करते हैं, मगर इफ्तार पार्टी से उनको बहुत प्यार और मोहब्बत है। ये क्या है सर? बीजेपी का चार्ज है आप पर। चलिए प्रजापति जी बोलिए। ये प्रदीप जी और राजीव जी का कंबाइन सवाल है, तो मेरा दोनों को जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, यदुवंश को गाय पालन के बारे में तो नहीं बताया जाएगा। अगर हम इस द्वापर त्रेता युग में विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, सीधी सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आम गौशाला है उसके बारे में नहीं कही है। ये उन गौशाला की बात कही है जहां गाय बेचारी भूखी मर रही है, जहां गाय बेचारी डॉक्टर के। मैं एक प्रश्न मैंने किया था एक दिन, मैं एक डिबेट में था वहां के बीजेपी के प्रवक्ता से, अगर शायद बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हो तो वो जवाब दे दे मुझे। है ना बाकरे साहब? है प्रदीप जी और राजीव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में गौशाला खुली है। उन गौशाला में गाय कट रही है, गाय मर रही है, गाय सड़ रही है, जिसकी बदबू आती है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, उन्होंने एक वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती की हो तो बता दें। एक वेटरनरी की भर्ती। भाई, गाय को आपने मरने के लिए गौशाला में छोड़ रखा है, गाय को आपने वहां पर सड़ने के लिए गौशाला में छोड़ रखा है। अगर कोई वेटरनरी डॉक्टर की भर्ती नहीं की है तो क्यों नहीं किया? आखिर गाय के इलाज के लिए वेटरनरी डॉक्टर की तो आवश्यकता होगी नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ इसलिए कहा था कि वहां पर गाय जो है मर जाती है, सड़ जाती है, जिनकी बदबू वहां पर आती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ राजीव जी, प्रदीप जी, मात्र 30 रुपए पर डाइट मिलते हैं, मात्र 30 रुपए। बताइए, एक गाय के लिए एक टाइम का चारा, एक टाइम का उसका भूसा, एक टाइम का हरा चारा, एक टाइम की खल, क्या 30 रुपए में पूर्ति हो सकती है? कभी पूर्ति नहीं हो सकती। प्रजापति साहब, आपने जो अभी जानकारी दी है वो जबरदस्त है, मैं मानता हूं। आई हैव टू गो टू समीर भाकरे साहब ऑफ द बीजेपी। समीर भाकरे साहब, वक्फ बोर्ड के ऊपर दो सवाल उठते हैं। एक तो नासिर साहब ने जो कहा, और प्रजापति जी जो समाजवादी पार्टी के उन्होंने कहा। दूसरा मेरा सवाल ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मीनारा मस्जिद जो है सर मुंबई की, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, मीनारा मस्जिद के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम डाल दिया कि ये तो हमारी है। अरे ट्रस्ट है वहां पे। एंड फाइनली ऑन द 15th of March द बॉम्बे हाई कोर्ट has ruled against it. The वक्फ बोर्ड has still gone against that order into appeal. They've gone to the Supreme Court. सर वहां पे 80 परिवारों का सवाल है, वह गरीब परिवार रहते हैं पीछे। They are living in the most hellish conditions. We have been there, Pradeep ji and I have actually shot over there. In fact, I can always say that because we started this campaign about 6-7 years ago, भाई इनकी rehabilitation होनी चाहिए। सर 80-88 परिवारों के लिए एक टॉयलेट है वहां पे। They are living, it's a living hell. अब वो कहते हैं कि इनको यहां से वेकेट कराया जाए, बाय फोर्स बाहर किया जाए, एविक्ट किया जाए, और ये लैंड जो है हमें हैंडओवर की जाए। सर अब मेरी बात सुनिए, आई एग्री एज फार एज नासिर साहब इज कंसर्न। व्हाट नासिर साहब सेड वाज, अगर किसी ने कुछ ऐसा किया, कुछ गड़बड़ करी है, तो उसके खिलाफ आप जो
जो आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी लॉ है उसके तहत आप करिए। लेकिन when 32 वक्फ boards are found to be acting in a manner which is somewhat questionable, then you open the door for this kind of legislation. बागरे साहब अब आप बोलें, what do you think? सर पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के जो मित्र है और समाजवादी के मित्र है, इनको एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ जी। तो इधर उधर की बात मत कर, बताइए काफिला क्यों लूटा। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि इन्होंने काफिला क्यों लूटा है। दूसरी बात ऐसी है कि कांग्रेस के जो थे उन्होंने पूरी चीज बोल दी, लेकिन एक भी कोई प्रोविजन या प्रावधान पे बात नहीं की। वो सिर्फ रेटोरिक की बात कर रहे थे कि एक कौम को ये किया जा रहा है, कौम को वो किया जा रहा है। अरे आपके राज में कौम की जो हालत हुई है, सच्चर कमेटी ने उसको अच्छे से कैप्चर किया 2006 में। सो कौम के बारे में जो आप बात करते हैं तो वोट लेने के लिए बात करते हैं, आप तो उनके भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया। दूसरे समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि नहीं कोई मुस्लिम इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली भाजपा की पार्टी है। एक आदिवासी महिला जो पिछड़े वर्ग से आती है उनको राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर अपने द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति हमने बनाया। तो आपको जो आप वोट की राजनीति से थोड़ा सा बाहर आइए और जमीन पे आइए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो बात करते हैं तो आपकी दोनों की परिवारवादी पार्टी है, आप बनाइए ना अपने पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम बनाइए, उसको सीएम मुस्लिम बनाइए। तो आपके यहाँ तो सिर्फ यादव परिवार से ही लोग अध्यक्ष बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी बने, अभी अखिलेश जी बने और आगे चल के भी परिवारवादी होने वाला है। यहाँ भी वही है, कांग्रेस में गांधी परिवार ही चलते आ रहा है। तो आप दोनों सिर्फ जो है ये आप दोनों की जो पार्टियां है वो कोई भी कौम का कोई भला नहीं किया है, सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। और प्रदीप जी देखिए, ये जो वक्फ कानून था, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर अपील की प्रोविजन इसमें डाल दी गई है तो इनको क्या तकलीफ है भाई? अगर अपील पहले भी थी अभी भी है तो आपको क्या तकलीफ है? अपील तो हाई कोर्ट में जानी है। तो आपको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मेन सेक्शंस थे उसको एक लिमिटेशन एक्ट होता है। कोई भी दुनिया के कानून में आपको क्लेम करना है तो लिमिटेशन रहता है। वक्फ कानून में कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं था, आप कहीं भी आपकी मर्जी हो जाए आप जाके क्लेम कर दो भाई मेरी लैंड हो गई, और कोई भी लिमिटेशन एक्ट नहीं था। सेक्शन 40 के अंडर ऐसा था कि जिसकी वक्फ बोर्ड बोलेगा वो सर्वे करेगा, वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड की। दूसरी बात ऐसी है सर कि वक्फ बोर्ड के कानून एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, ये कोई किसी धर्म के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये मंदिर की बात कर रहे थे तो मस्जिद कमेटी में थोड़ी भाई साहब कोई हिंदू आके बैठ रहा है। ये तो मंदिर कमेटी में हिंदू बैठेंगे, मस्जिद कमेटी में मुसलमान बैठेंगे, क्रिश्चियन के चर्च में क्रिश्चियन बैठेंगे। ये तो जैसे चैरिटी कमिश्नर एक्ट के अंडर जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके अंडर सब मंदिर आते हैं, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में चैरिटी कमिश्नर तो कोई भी धर्म का बन सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वक्फ बोर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और जो रिलीजियस बॉडीज है, मस्जिद होगी या जो भी आपके धार्मिक अनुसंधान होंगे उनके ऊपर कोई बैठाने नहीं वाला। ये माननीय देश के गृह मंत्री ने एकदम क्लियर कर दिया है और आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए, आप क्लियर एक्ट पढ़िए। तीसरी बात है सर, एक मुझे सर कैसा था कि एक बात होती है कि मेरे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी डोनेट की। अरे भाई साहब, आप क्या डोनेट कर सकते जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद से कमाई हुई है। आप वक्फ बाय यूजर भी कर रहे हैं, यानी जो प्रॉपर्टी को आप किसी से यूज करने पे लिए उसको आप डोनेट कर दे रहे, सरकार की प्रॉपर्टी आपको आप डोनेट कर दे रहे। तो ये किस तरीके की धांधली वक्फ कानून में हो रही है। तो देखिए, कोई भी रिफॉर्म अगर अच्छे चीज के लिए आता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में इतने रिफॉर्म्स हुए, लैंड एक्ट में इतने हुए, हर चीज में जीएसटी नया है। क्या हम लेके बैठे क्या कि 50 साल पहले हमने सेल्स टैक्स लाया था, वैट लाया था, तो वही कानून चले? अरे जो कानून को रिफॉर्म की जरूरत है, और ये रिफॉर्म आज के दिन की बात नहीं है, ये तो रिफॉर्म क्योंकि इसका मिसयूज होता गया। मुझे सर बताइए 2013 में आपको वक्फ कानून में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी? आपने सेक्शन 40 क्यों डाला? उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन 10 साल में 21 लाख एकड़ कैसे बढ़ गई? उसके 1913 से लेके 2013 तक आपकी 18 लाख थी और 10 साल में इतने मुसलमानों ने डोनेट आके कर दी। और ऐसी जो वक्फ बाय यूजर था, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना, जो मैं दान कर सकता हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी के प्रॉपर्टी को यूज करूँ और उसको दान करूँ, सरकार की प्रॉपर्टी को यूज करूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वक्फ कानून में
अगर ये नए वक्फ कानून का कुछ गलत होने वाला है तो आपके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और गृहमंत्री साहब ने कई बार बोला है, देखिए ये इमोशनल रिटोरिक रेस करके कि कब्रिस्तान ये कर दिए जाएंगे, मस्जिद ये कर दिया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो जहां पर प्रेयर्स हो रही है, जहां पर लोग कब्रिस्तान है, जहां पर स्कूल है, उनको थोड़ी कोई डिस्टर्ब किया। जो गलत तरीके से कुछ चंद मुसलमानों ने जो वक्फ कानून का मिसयूज करके एक लैंड माफिया के रूप में वो जगह का इस्तेमाल किया है अपने पर्पस के लिए, पर्सनल के लिए। मुझे बताइए, 100 वक्फ कानून के पास, बोर्ड के पास इतनी जमीन थी, इनका सालाना इनकम 123 करोड़ रुपए आ रहा है। तो अगर गरीब मुसलमानों के लिए कितने यतीम खाने खोले, कितने स्किलिंग सेंटर खोले, कितने हॉस्पिटल्स खोले, कितने स्कूल्स खोले, कितने बच्चों को आपने पढ़ाई की। अरे भाई साहब, ये आपके कम्युनिटी से आ रही है। आपके कम्युनिटी के 99% लोग ये वक्फ कानून के फेवर में है, बिकॉज उनको पता है गरीब मुसलमान का इससे भला होने वाला है। 12,000 करोड़ का इनकम स्ट्रक्चर कमेटी का बोला था 2006 में आना चाहिए था, उस वक्त 120 करोड़ आ रहा था, अभी तो 30,000 करोड़ आना चाहिए। तो ये जो है सर प्रदीप जी और कोई भी कम्युनिटी को बहला फुसला के इन्होंने वोट की राजनीति सिर्फ की है, बाकी कुछ नहीं है। एंड इट इज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अच्छा मुझे बताइए, मोदी साहब ने कौन सी स्कीम धर्म के आधार पर दी है? क्या आवास धर्म के आधार पर दी है? क्या उज्ज्वला योजना धर्म के आधार पर? ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? और कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट रिजर्वेशन कर रहे सर। ये राजनीति इस तरीके से नहीं चल सकती। बाकर साहब, देयर इज अ फियर अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज क्या है कि आप सीएए सामने लेके आते हो, सीएए में कुछ नहीं है, बट उसके पीछे एनआरसी आ रहा है, उसके पीछे एनआरसी का डर है। आप सेक्रेट प्लेसेस नहीं सुने ना, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, एक्ट बना हुआ है, मगर अलग अलग आप ही के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर सर्वे का पिटीशन फाइल करते हैं, इसको स्क्रैप करो करके पिटीशन फाइल करते हैं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो और दूसरे आरएसएस कहता है कि हमें औरंगजेब के टोम से कोई मतलब नहीं है, मगर विश्व हिंदू परिषद उधर पहुंच जाता है, बोले हटाओ, बजरंग दल पहुंच जाता है हटाओ, देवेंद्र फडणवीस प्रश्न चिन्ह बोलता है कि हटेगा तो अच्छा ही है। तो ये क्या है? कंफ्यूज आप एक समाज को आप कंफ्यूज करके उसको अटैक कर रहे हैं, ऐसे इनके मन में एक पैदा हो गया है, इसको कैसे दूर करेंगे बाकरे साहब? सर बीजेपी की सिंपल पॉलिसी है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। इनको आदत लगी है कि सालों से अपीजमेंट करके कोई कम्युनिटी को गुमराह करके उसके वोट लिए जाए। आप देखिए, जब ट्रिपल तलाक हटा था उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को जो जस्टिस, सर वर्बल ट्रिपल तलाक हटा है, ट्रिपल तलाक नहीं हटा है, वर्बल ट्रिपल तलाक। जी हाँ, बोलिए वही सर जो मिसयूज हो रहा था उस चीज का, तो जो हटा है उसमें सर आज मुस्लिम महिलाएं की इतनी खुश है और वो बीजेपी की तरफ वोट कर रही है। आप मुझे बताइए, सीए कानून कभी मुस्लिमों के खिलाफ था ही नहीं। एक गलत तरीके का प्रचार करके एक आंदोलन खड़ा किया गया कि एनआरसी में आपकी नागरिकता जाएगी, सीए। अरे आपको अगर नेशनल सिटीजन रजिस्टर कोई बनता है तो देश के लिए अच्छा है, उसमें दिक्कत क्या है? सर वो तो डिमांड कांग्रेस की थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की डिमांड तो कांग्रेस की है ना सर। सर देखिए, कांग्रेस की जो डिमांड थी, और कांग्रेस आज अपने मूल मुद्दों से भी भटक चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है, उनको पता नहीं है कि हमको क्या अपोज करना है। लेकिन बाकरे साहब, मेरी आपसे एक ऑब्जेक्शन है, मेरी आपसे एक ऑब्जेक्शन, मेरा सवाल आपसे है सर, एक चीज का जो प्रचार आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर किरण रिजिजू साहब ने बात, I don't know why he didn't say it in such detail, but Mr. Amit Shah said it in great detail. I didn't watch what Mr. Amit Shah said in the Lok Sabha, but I did watch what he said in the Rajya Sabha. Sir, there's a very important point here. अमित शाह जी ने ये कहा, और सुनने वाली बात है, प्रजापति साहब और नासिर साहब जरा ध्यान से सुने प्लीज। He said this is not a law which will come into effect with retrospective effect. It will come into effect now. जो पुरानी चीजें हैं उनको किसी को टच नहीं किया जाएगा। नंबर एक, आपकी जितनी मस्जिद हैं, आपके जितने दरगाह हैं, जितने आपके कब्रिस्तान हैं, जितनी भी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दिस इज व्हाट मिस्टर अमित शाह सेड, बट व्हाट ही आल्सो सेड वाज कि जहां जहां पर इलीगली कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, वी विल डेफिनेटली टेक इट बैक। That's it. तो इसका तो प्रचार आपको करना चाहिए सर बागरे साहब। सर अब आप बोले काफी नहीं, आपने राज्यसभा का आपने भाषण सुना, लेकिन आपने अगर लोकसभा का भी भाषण सुना रहता, जो 46 मिनट का भाषण है उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है,
अरे भाई, कल जाके कोई भी धर्म का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सरकारी जमीन पे कब्जा करता है तो वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सर, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। सरकार की जमीन जो है वो जनता की जमीन है और उसका गवर्नेंस के लिए। और दूसरा, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है, किस जगह इंटरफेरेंस है? जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, उसमें अगर बोर्ड को अगर कोई इश्यूज दिखते हैं, जैसा चैरिटी कमिश्नर, सर आप देखिए चैरिटी कमिश्नर को पूरे जो हिंदू टेम्पल्स के जो ट्रस्ट है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऑडिट अकाउंट्स करने पड़ते हैं। उसमें इफ देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी कमिंग, व्हाई दीज पीपल आर गेटिंग एजिटेटेड? क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो पोल खुलने वाली है, इनके जो लोगों ने इंकरेज करके जगह रखी है जिससे इनकम नहीं आ रहा है। सर गरीब मुसलमानों तक ये कभी फायदा पहुंचाया नहीं, और ये मतलब मुट्ठी भर लोग हैं। आप जब केसेस निकलेगी ना, देवेंद्र जी ने बोला है, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि 2000 से 2014 के बीच में आप देखेंगे चौंकाने वाले। सर आई होप यू स्टार्ट फ्रॉम 1995। सर व्हाई नॉट 2000? क्योंकि 1995 में सबसे बड़ा केस हुआ है सर। आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली एट दैट टाइम एंड आई रिमेंबर वी कैरीड इट। यू नो, आई नो, नासिर साहब नोज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट अगर कोई चीज गलत पहले भी हुई है तो सर उसके ऊपर हम पूरा जस्टिस करेंगे। आई होप सो। Sir, I would love to see that. This is Pradeep ji, एक second. I have to say this. I would love it. I would love to see you do that. But do you have the courage to do it? No. Wait a minute. Do you have the courage to do it? देखिए, the fundamental announced it essentially. जी, sir, I am talking about the biggest case in Bombay. Sir, it was called Bombay at that time. यतीम बच्चियों की जमीन थी. It was an orphanage meant for Muslim girls, poor Muslim girls. Sir, do you have the courage to take action there? I am asking you, Bakre Sahab. Sir, the action will be taken. Okay. Whoever is involved. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि कौम के साथ मशवरा नहीं किया गया। Whosoever is involved, गलत बात है। That man is a multi-millionaire now. That man who facilitated the deal is a multi-millionaire. 4 generations उसकी काम करने की जरूरत है उसको। Federal structure, what the accusation on you? एक मिनट में जेपीसी के बारे में बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। सर देखिए जेपी, इन्होंने जो बोला कि कौम के साथ कोई संवाद नहीं हुआ, ये एकदम गलत और झूठ बात है सर। जेपीसी का रिपोर्ट 946 पेज का है, जिसमें आप देखिए पूरे वक्फ बोर्ड के, पूरे हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को चांस मिला था, हर मुस्लिम जो संगठन है उनको चांस मिला था, हर स्टेट गवर्नमेंट को चांस मिला था, हर व्यक्ति। सर 1 करोड़ के ऊपर सजेशंस वक्फ बोर्ड में आए, तो ये किस तरीके की बात कर रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुआ है? कंसल्टेशन पूरे देश में मैसिव लेवल पे हुआ है। कंसल्टेशन तो इमरजेंसी लगाते वक्त नहीं हुआ था। आज आप जो बात कर रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं हुआ, वक्फ कानून का पूरा जेपीसी बाकरे साहब आपके खिलाफ एक आरोप लगा है, रिपोर्ट है जी। बाकरे साहब आपके खिलाफ आरोप है कि आप जान करके मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना चाहते हैं। You are trying to show the Muslim community down. Are you trying to do that? Not only that, आगे जाके you're defeating the federal structure of the constitution of democracy, because minority rights have to be protected as per the constitution. It's your fundamental duty to protect minority rights. They cannot live eternally under the constant fear that something is going to continuously happen to them. And this is exactly what you're doing. Your minorities are living under constant fear. So you are essentially destroying the federal structure of entire democracy and constitution, Bakre Sahab. Are you doing that, sir? Bakre Sahab? Sir, absolutely not. This is all, I can say, a nonsense propaganda which is being done. What I can say, आज आप बताइए कि मुस्लिम समाज को भी तो ग्रोथ के सर सब चीजें पैरामीटर्स मिल रहे हैं ना, वेयर वी आर पुटिंग स्पेसिफिक रिलीजन बेस्ड बेनिफिट्स और स्कीम्स। और दूसरा जो फेडरल की बात कर रहे हैं सर, ये ईवीएम का जो मशीन है, इसमें बार बार ये सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। इनको ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना कोई इंस्टीट्यूशन पे विश्वास है। हर चीज में उनको ऑब्जेक्शन लेना है। जब ये चुनाव जीतते हैं कर्नाटक में तो बहुत अच्छे से होता है ईवीएम, जब ये महाराष्ट्र में चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है, जब ये लोकसभा में महाराष्ट्र में चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बहुत बढ़िया है। तो सर इनका कैसा है कि एक पार्टी की बाकरे साहब कहने का मतलब ये हुआ, there is absolutely no attack on the federal structure. Show me one instance where there is an attack on the federal structure. तो बाकरे साहब, so they are in the opposition, they'll say so, what else do you expect? But बाकरे साहब तो कहने का मतलब ये हुआ, on one thing we'll hold you to it, that the actual value of the land which is being held by the Waqf board will be unlocked by this, and this will be utilized
for the welfare of poor Muslims, यानी जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं उनके लिए जो एक्चुअल लैंड की वैल्यू है वो that will be unlocked for the welfare of poor Muslims. Is that what you're doing, बागे साहब? सर दैट विल बी डेफिनेटली अनलॉक। आप देखिए, कोई मुझे केस पता चला है कि जो 500 एकर्स में किसी 5 स्टार होटल को इन्होंने रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी, 500 एकर्स 12,000 रुपए महीना पे दिया है सर। इतने ये मतलब इतने कौन से 1900 में रह रहे क्या ये कि आज के जमाने में जिसका इनकम होना चाहिए करोड़ों रुपए में वो 12,000 रुपए में। सर इट इज डेफिनेटली अ लैंड माफिया। लैंड माफिया ने इसके ऊपर कब्जा किया था और मुसलमान वक्फ बोर्ड के थ्रू ये सब ऑपरेट कर रहे थे। अब देखिए, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी लोग निकले जो वक्फ बोर्ड को सामने करके कुछ हिंदू भी निकल जाएंगे जिन्होंने एनक्रोच किया। मैं ऐसा नहीं बोलता किसी मुसलमान ने किया, हो सकता है कि कुछ इसमें लैंड माफिया भी हो। तो ये कांग्रेस और समाजवादी को सोचना हर चीज को धर्म के नाम पर मत बांटिए सर। देश को हर चीज में धर्म के नाम पर बांटने की जो आपकी आदत है, इसके कारण देश एक बार टूट चुका है। आप दोबारा उसको उस तरफ लेके मत जाइए। लेट मी गो अक्रॉस टू नासिर साहब। नासिर साहब, एक चीज है, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे उस वक्त जब बागरे साहब बोल रहे थे। इन्होंने प्रॉमिस किया है सर, जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, आपको भी मालूम है किस केस की बात कर रहा हूं, इन्होंने वादा किया है कि उसके ऊपर तहकीकात होगी सर, तफ्तीश होगी उस पर। आपको लगता है होगी? मुझे नहीं लगता होगी, वेरी फ्रैंकली आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप बताएं। बड़ा उन्होंने तो एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं। बोलिए सर। हेलो, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। मेरी आवाज ही मुझे रिपीट हो रही है। कोई बात नहीं सर, जेंटलमैन कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। नासिर साहब की आवाज उनको एको कर रही है सर, आपके खिलाफ साजिश है नासिर साहब। मुखालफत यूं ही नहीं करता हूं, मुखालफत की वजह कुछ वजह होती है। मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है सिर्फ, मेरे मुल्क का कोई खुदा नहीं। तो मैं मुखालफत क्यों करता हूं ये आपको समझना पड़ेगा। आप संविधान की बात, हम जिसे कहते हैं कि आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि क्या चेंज कर दिया अरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। जो आर्टिकल 26 समानता की बात करता है, धर्म के आधार की बात नहीं, हर धर्म को अपनी आजादी देता है। आप उस पर अटैक कर रहे हो और आप बोलते हो हम खामोश हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम खामोश हो जाए। आप बेरोजगारी पे इतनी ताकत से आप लेके बिल आ जाते हो, महिलाओं की सुरक्षा पे इतनी ताकत से बिल लेके आ जाते, किसानों की आत्महत्या पे इतनी ताकत से बिल लेके आते, फिर आपसे बात करते तो आपके बातों में दम होता। आप केरला में कुछ मंदिर गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जो सरकार के अंतर्गत है, उसको बीजेपी कहती है इसे मुक्त करो और प्राइवेटाइजेशन को दो। यहाँ बोलते नहीं, इस सारे वक्फ बोर्ड को सरकार। तो मैं पूछता हूँ, वक्फ बोर्ड सरकार का पार्ट है या नहीं है, या सरकार उसे चलाती है या नहीं चलाती? तो मैं अभी एक बार इन्होंने इतने देरों के बाद में अगर 20 मिनट इन्होंने बोला, 20 मिनट में एक बार भी नहीं बोला उत्तर प्रदेश में कौन सी अभी आपका चेयरमैन बैठा है, बिहार में कौन चेयरमैन बैठा है, इससे 17 साल से किसका चेयरमैन बैठा, अगर उत्तराखंड में किसका उत्तराखंड में किसका है, मध्य प्रदेश में किसका है, ये वक्फ बोर्ड कौन चला रहा है? आपके नुमाइंदे चला रहे हैं। तो क्या वो भ्रष्टाचारी हैं? बिना उनके भ्रष्टाचार तो नहीं मान रहे, इसमें गलत हो रहा है। सर सुन लीजिए मेरी बात को, मान लीजिए ना सर, गलत हो रहा है, इसलिए कानून में बदलाव किया गया। सुन लीजिए ना, क्यों आपके लोग जेल में क्यों नहीं गए? अगर गलत था तो उन्हें आपके चेयरमैन को जेल में होना चाहिए था ना। ट्रिब्यूनल आपने नियुक्त किया है, ट्रिब्यूनल ने गलत, सुन लीजिए सर, ट्रिब्यूनल ने गलत किया है तो ट्रिब्यूनल को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आपने क्या किया? आपने अभी अचानक बोल दिया कि यादव ही बनेगा। अरे एक यादव से इतनी नफरत है क्या? एक ओबीसी से इतनी नफरत है क्या? एक बैकवर्ड से इतनी? आपने बोलते मुलायम सिंह का फैमिली बनेगा ना, तो मैं खामोश हो जाता। मुझे लगता शायद आपकी ये पॉलिटिकल टिप्पणी, मगर आपने यादव नाम यूज किया, पूरे यादव समाज को आप घेर लेते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप किसके बारे में बोल रहे हैं? यादव अगर बनता है तो आपको तकलीफात क्या है भाई? और आप कहते हैं मुसलमानों के हम रहनुमा हैं। आप ही हैं जो कहते हैं कि कुछ मुसलमान ओबीसी के अंदर आते हैं, अगर उनको 4% रिजर्वेशन मिलता है तो आपको बड़ी ऑब्जेक्शन, पेट में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोहराम बरपा कर देते हैं। यही रिजर्वेशन आप गुजरात में दे रहे हैं, तो आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? यही रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में मिल रही, तमाम उन राज्यों में, बिहार में मिल रही है, वहां आपकी आवाज नहीं आई क्योंकि सरकारें आपकी थी। तो मुसलमानों के से सिवाय आपको नफरत के कुछ नहीं है। नहीं तो आप 12 साल का डेटा दीजिए, मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है?
क्या कोई माइनॉरिटी कॉलेज खोला आपने? क्या कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाया आपने? लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन निकाला आपने? इस कौम को कहां धकेल दिया आप? सच्चर कमेटी को, अरे सच्चर कमेटी हम ही बनाने वाले, हम ही इनकी चिंता कर रहे थे, हम ही सोचना चाह रहे थे ये कौम कहां बिछड़ गई है, हमने ही वो रिपोर्ट बनाई, हम उसके लिए काम कर। मगर आपको सच्चर कमेटी आज लागू कर दीजिए, आप है हिम्मत आप में लागू करने का, पर आप उसका पैमाना पैरामीटर तो लाते हैं पर उस पर काम नहीं करते। उसका एग्जाम्पल तो मैं कहता हूं ना, सिर्फ फाइलों में रंग आपके गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं। आप फाइलों अच्छे अच्छे दिखाते हैं पर काम कुछ नहीं करते। इस मुस्कौम को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? कुछ तो है आपके पास पैरामीटर? नासिर साहब, आपने यूपी की बात करी। यूपी के लॉन्ग सर्विंग चेयरमैन ऑफ द वक्फ बोर्ड इज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर जुफार अहमद फारूकी। इमरान महबूद खान साहब भी हैं जो मेंबर हैं, ट्रस्टी हैं। अदनान फारूक शाह भी हैं, मौलाना नाइमुर रहमान सिद्दीकी हैं, मिसेस सबिया अहमद हैं और डॉक्टर तबस्सुम खान हैं। दिस इज द ट्रस्ट ऑफ द वक्फ। इनको नियुक्त क्या करता है? इनको नियुक्ति कैसे होता है पता है सर आपको? जी मालूम। इनकी नियुक्ति कौन करता है जी? कैसे इनके मेंबर बनते हैं? जिनकी 5 लाख से ऊपर इनकम हो वो इन पे बनता है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? वहां की चीफ सेक्रेटरी करता है। चीफ सेक्रेटरी जाके वहां नियुक्ति करता है और बोलते हैं सरकार का इंटरफेयर नहीं है, सरकार का फुल इंटरफेयर है। तो आप रेरा को क्या करेंगे? वो भी तो एक ट्यूबनल ही है ना, उसके आप तो बोलेंगे ये ट्यूबनल पे भरोसा नहीं। जहां पूंजीपतियों का लोन माफ कराना हो वहां का आपको ट्यूबनल मंजूर है, यहां का ट्यूबनल मंजूर नहीं है। यानी मैं बार बार कर रहा हूं, इस कौम को बदनाम कर रहे हैं ना आप। कभी सीए, एनआरसी, यूसीसी तमाम तक, पर आपने कभी मुसलमानों के लिए अगर कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं आजादी की, उनके धर्म के प्रेक्षाओं में आप इंटरफेयर। आप बोलते 9 लाख एकड़ जमीन, अरे कब्रिस्तान कौन सा इनकम देगा? मुर्दों से आप इनकम लोगे क्या? कब्रिस्तान सबसे ज्यादा लैंड तो कब्रिस्तानों में गया है, और आप बोलते आज के जमीन कब्जा कर लिया। कौन सा जमीन कब्जा कर लिया? अरे ये तो मुगलिया सल्तनत के दौर से डोनेशन चालू हुआ, उनके राजाओं ने चालू किया, नवाबों ने चालू किया। ये आज से नहीं, 1877 से चला आ रहा है। ये कोई वक्फ, जब ये देश भी नहीं था तब से ये वक्फ का ये चला आ रहा है। आप पता करिए कि आप थोड़ा और रिसर्च डीप में जाइए। ये वक्फ कौन सी लैंड बढ़ गई सर? 2013 से 2025 के बीच लैंड बढ़ी है ना, 21 लाख एकड़ बढ़ गई। अरे बढ़ गई, हमने दिया दान। सुन लीजिए ना, कौन सी जमीन बढ़ गई? मैं पूछता हूं कौन सी? आप बताइए, आपने बोला कि दान किया, तो दान आप अपनी प्रॉपर्टी का करेंगे ना? आप किसने किस जमीन को, अरे सर सुनिएगा, किस जमीन को कब्जा किया मुसलमानों ने? ये बोला कि अरे सर कोई कब्जा करके, सुनिए ना, अरे सर सुनिए, का पानी हो जाएगा, खुद मैं कब्जा करूंगा, मैं वक्फ को दे दूंगा। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं होगा ना, इतना तो अक्लमंद सब है कि जानती कि वक्फ बोर्ड में जाने के बाद कोई सेल परचेज नहीं करेगा, वक्फ के पास जाएगा, वो सरकारी प्रॉपर्टी बन। वक्फ का मतलब सरकारी प्रॉपर्टी, नहीं वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी। अरे सुन लीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी है? एंटेलिया, अंबानी के घर, अंबानी का घर की बात कर रहे हैं क्या? मुझे तकलीफ नहीं है, आप तकलीफ है कि धर्म के आजादी पे जो हमला है लोग, क्यों आप इस कौम को उस लायक भी नहीं समझते? अरे यार आप इस तरह बीच में मत बोलिए। आप मस्जिद कमेटी नहीं होता, फिर गलत बात मत करिए। मस्जिद में एक इमाम होता है, एक मुतवली होता है, कोई उसको कमेटी वक्फ चलाती है, वक्फ की बोर्ड होता है। आप गलत, आपको फिर नॉलेज नहीं इस कौम के बारे में, तो आप मुझे मत समझाइए। मैं आपको बात करता हूँ, आप बोल रहे हैं कि आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप, इसलिए तो मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं। आप गलत आपने मस्जिद को ट्रस्टी, मस्जिद ट्रस्ट अलग है, वक्फ अलग है। ट्रस्ट को वक्फ से क्यों मिला रहे हैं? आप वक्फ को ट्रस्ट से मिला रहे हैं। मैं कर रहा हूं वक्फ की बात करो। आप ट्रस्ट चैरिटेबल कमिश्नर चलाता है कि ये वक्फ चलाता है? आप दोनों चीज को क्यों मिलाने पे लगे हुए हैं? पर आप कंफ्यूज हो चुके हो। नासिर साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट में यह हो गया था कि आपके पास जो 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, 9.4 लाख एकर्स ऑफ जमीन है, एस्टिमेटेड 1.2 लाख करोड़, इससे आपको 50,000 स्कूल बनना चाहिए था आज तक। 50,000 स्कूल्स फॉर द अंडर प्रिविलेज, 500 स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए था। ये नहीं हो गया। मिलियंस ऑफ जो गरीब है, यतीम है, उनके लिए स्कॉलरशिप देना चाहिए था। ये नहीं हो गया। सिर्फ 136 करोड़, 163 करोड़ बस। अच्छा, बोलिए, जवाब देता हूं। हाँ। आप बताइए, भारत की सरकार ने खुद अपनी सरकारी जमीन पे कितने सरकारी कॉलेज बनाए? चलिए आप बताइए, 2014 से 2025 के बीच कितने सरकारी यूनिवर्सिटी बने? चलिए बताइए।
2000 अभी सरकारी जमीन छोड़िए, वक्फ बोर्ड को बाहर में जाने दीजिए, आप इसी की बता दीजिए सरकारी जमीन पे जो सरकार, अरे सरकार ने तो डिफेंस की जमीन बेच दी, रेलवे की जमीन बेच दी, IIT, सारे चीज तो आप सरकारी कंपनियां बेच रहे हो और हमें समझा रहे हो। आपने कितनी कंपनियां बनाई सरकार में? सरकार नहीं है सर, वक्फ बोर्ड सरकार नहीं है, वक्फ बोर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं आज भी बोलता हूं नहीं, वक्फ बोर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, ये आपकी जुबान है, ये आपकी जुबान है, ये आपकी जुबान है, यादव आपके साथी कह रहे हैं, ये आपकी जुबान है, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये आप कह रहे हैं। कौन मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये आप कह रहे हैं, पर हम कह रहे हैं वो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर करप्शन है उस पर एक्शन होना चाहिए, करप्शन के विरोध में हम लोग भी हैं, जहां कब्जा है उसको मुक्त कराइए। चेयरमैन आपका, ट्रिब्यूनल कोर्ट आपका, आप एक्शन ले सकते थे कि ये इंक्रोचमेंट है खाली करिए, फोर्स आप भेज सकते थे, मगर नहीं, राजनीति करना है क्योंकि किसानों, मैं कह रहा हूं प्रोविजन गलत बताइए, मैं प्रोविजन बता रहा हूं ना, आप किसी के धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, पे बात कर लीजिए ना, सुनिए मैं प्रोविजन बता रहा हूं, मैं प्रोविजन बता रहा हूं, मैं प्रोविजन बता रहा हूं ना, मैं प्रोविजन सुन लीजिए ना। आप महिलाओं की बात करते, महिलाओं का रिजर्वेशन आप पास कर दीजिए, क्यों नहीं कर देते? किधर किया? 2036 सर, 2036 है सर, सुनिए ना, 2036, अरे सुनिए, मैं बोला ना, ये सब कहानी मत सुनाइए, 2036 यहाँ नहीं रखा, कर देते इसी इलेक्शन में, इसी इलेक्शन में कर दिया। अरे हम तो 1930 में हमारा, आप कराची अधिवेशन देख लीजिए, हमने महिलाओं को क्या पावर दिया है, 1930 का ही हमारा देख लीजिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था हम महिलाओं के लिए सोचते थे, हम कराची अधिवेशन से सोचते हुए चले आ रहे हैं। आप हमें मत सोचिए महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, हम ही है जो महिलाओं को राष्ट्रपति बनाए, हम ही है जो देश का प्रधानमंत्री बनाए। सुन लीजिए, देश में कितने महिला आपने मुख्यमंत्री बनाए? एक लड़के के राष्ट्रपति द्रौपदी अभी दिल्ली में बनाए, अभी दिल्ली बनाए, अरे फर्स्ट टाइम, वो भी आपको उस पे कितनी राजनीति की वो हमें पता है। आप पहली महिला को आपने कितना इज्जत दिया हमें पता है, कितनी टिकटें देते हैं, कि इस कौम से मोहब्बत है इन्हें, मुस्लिमों की कौम से कितने कैबिनेट में जगह दिया है मुस्लिमों को? एक नाम याद है आपको? जरा सुनाइए, कौन है कैबिनेट मिनिस्टर अभी मुसलमान? कोई है आपका? आप मत बताइए इस कौम के रहनुमा है आप। अब इस कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नफरत, क्योंकि सुनिए, जब शेयर बाजार गिरेगा तो औरंगजेब कब्र से निकलेगा। आप देख लीजिएगा, चाइना हमारे अपने गांव बसाएगा तो औरंगजेब कब्र से निकलेगा, देश बदहाली पे जाएगा तो औरंगजेब का, अरे मुर्दों से लड़ते लड़ते आप कब्रिस्तानों से लड़ने चले गए, क्या शर्म नहीं आती? अरे आपको इस कौम को तरक्की याफ्ता करते, इसके लिए कुछ काम करते, एक पार्लियामेंट में आके बताते, हाँ इस कौम को हमने बढ़ाया, समाज को हमने बढ़ाया। साहब ने शाह बानो बात किया, ट्रिपल तलाक बात किया, आर्टिकल 370 बात किया, वक्फ रिफॉर्म। वोट बिहार का इलेक्शन है ना, बिहार का इलेक्शन है, तो शाह बानो क्या, शाह बानो देश के हित में था, वो पूछ रहे हैं, वो आपसे वही पूछ रहा था शाह बानो वाले केस में, ट्रिपल तलाक वाले केस में। इतिहास के पन्नों में कुछ गलतियां हुई है, मैं बार बार कहता हूं, कुछ इतिहास के पन्नों में गलतियां हुई, हम उस गलतियों को मान लेते हैं, मगर आज जो आप गलती कर रहे हैं आप मानेंगे क्या? तो अभी उन्होंने गलत इतिहास भी लिखा था, कभी भगत सिंह जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, इन लोगों को कभी उतना सम्मान नहीं मिला जितना एक परिवार के पूरे उनको दिखाया गया कि परिवार के वजह से आजादी मिली है। शहीद भगत सिंह को आप कैसे जानते हैं? नहीं, शहीद भगत आजम को सावरकर ने क्या कहा था? चलो बताओ, चलो अभी आपने सावरकर का नाम लिया, भगत आजम सावरकर को क्या कहते थे? नहीं, आप पहले बात सावरकर की बात निकाला है तो बड़ी दूर तक चली जाएगी। आपने भगत सिंह के बारे में सावरकर ने क्या कहा था? नहीं, आप कोट करिए, अभी आपने नाम लिया सावरकर का, मैंने नाम नहीं लाया था। आपने मुझे बताइए, इंदिरा गांधी ने आप सावरकर जी के बारे में क्या, के बारे में आप इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा था सावरकर जी के बारे में आप बताइए, हो जाएगी पूरी यही हो जाएगी। अरे अभी आपके चेहरे से नफरत उतार देता हूँ, अभी आपके चेहरे से नफरत उतारता हूँ, अभी आपके जो राजनीति दिखाता हूँ, जो आपकी गंदी राजनीति है। सावरकर ने क्या कहा था भगत सिंह को, इसका जवाब दो। भगत सिंह के बारे में कौन से अपशब्द यूज किए थे? अरे अभी जवाब नहीं मिलेगा तो आप इंदिरा गांधी के दामन में छिपो मत।
आप दूसरे के दामन में मत छिपो। आप पे ताकत नहीं है कि उनके दामन में छिप सको। उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। उनके आईने सुन लो, आप सुन लो, आप सिर्फ सावरकर के बारे में बताओ, सावरकर जी के बारे में बताओ, भगत सिंह के बारे में I think we are diverting, gentlemen. बारे में क्या कहा था ये बताओ। I think we need to go to प्रजापति साहब। अरे both of you gentlemen, अरे नहीं मालूम है आपको, आप इतिहास नहीं पढ़ते हो, झूठा इतिहास पढ़ते हो, इसलिए आपको पता नहीं है। सावरकर की किताब से कोट करो, सावरकर ने क्या कहा। नासिर साहब, one second please. I have to go to Mr. Prajapati with your permission. सावरकर जी के ऊपर और सरदार भगत सिंह के ऊपर, बी.आर. अम्बेडकर जी के ऊपर नहीं सर, मैं उस मुद्दों को नहीं लाता हूं। अगर भगत सिंह का नाम आएगा, सावरकर को उनके साथ जोड़ेंगे तो वो से मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या रिस्पेक्ट था शहीद भगत आजम सिंह का सावरकर के नजर में? ये उनके किताब में है, ये नासिर हुसैन या कांग्रेस के इतिहास में नहीं है जो उन्होंने अपनी जूनी लिखी। सर ऐसा है, अगर वीर सावरकर, हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी, अरे बाकरे साहब, डोंट गो देयर बिकॉज नासिर साहब विल हैव वीर सावरकर्स बुक समवेयर क्लोज बाय एंड ही विल कोट फ्रॉम इट एंड देन आई एम अफ्रेड यू वोंट बी एबल टू आंसर सर, because there are certain things, especially with regard to so many things that we hold dear, that may not be acceptable to all of us. Contribution in the freedom struggle. Sir, certainly. गलत तरीके से प्रोजेक्ट करती है. Certainly. But there are lots and lots of Congress leaders in the past who have admired Veer Savarkar and whose admiration is right there. ऐसी बात नहीं है sir. So that I mean that's an issue which is fine. I mean people want to raise it. It's absolutely fine. प्रजापति साहब, आप ये बताएं कि मुस्लिम रिजर्वेशंस को लेकर के, क्योंकि मुसलमानों की बात हो रही है इसलिए पूछा, मुस्लिम रिजर्वेशंस को लेकर के और मुसलमानों की स्थिति को लेकर के बार बार सच्चर कमेटी का जिक्र आता है, लेकिन जो पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, विच हैड रिकमेंडेड एन एक्स अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ऑल माइनॉरिटीज, उसका हम लोग कभी जिक्र नहीं करते हैं। यह कहा जाता है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो है, विच इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आप उसको रीड करें, एंड इट सेज वेरी वेरी क्लियरली कि मुस्लिम्स में ये जाते हैं जिनको फॉरेन रिजर्वेशन की जरूरत है और इनको ओबीसी कैटेगरी में एकदम डालना चाहिए। प्रजापति साहब, आप इस विषय में क्या कहेंगे प्लीज। राजीव जी, समाजवादी पार्टी इसीलिए पूरे देश के अंदर एक मांग लेकर के चल रही है, और समाजवादी पार्टी की ही देन है कि वो पीडीए को लेकर के आई, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक सभी लोग आ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का विजन क्लियर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन क्लियर है। 2024 में हमने पीडीए के आधार पर टिकट देने का काम किया, और इसीलिए समाजवादी पार्टी हर प्रदेश में चाहती है पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना हो, और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। जब उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी तो जितने भी मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो इलियासी हो, सैफी हो, सिद्दीकी हो, इदरीसी हो, कोई भी समाज के हो, चाहे जिन्हें हम पिछड़ा कहें, चाहे दलित तो नहीं आते हैं मुस्लिम में, लेकिन जितने भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादातर जातियां हैं वो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। और मैं तो फिर कहता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तेलंगाना में रेड्डी जी ने 23% से बढ़ा करके 42% आरक्षण किया है तेलंगाना के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, ये लंबी चौड़ी बातें भाग रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ आप कब न्याय करोगे? मुस्लिम जातियों के साथ कब न्याय करोगे? इस देश के अंदर जातीय जनगणना करा करके इस देश की 62% आबादी को 62% आरक्षण देने का काम कब करोगे? क्योंकि आप बातें तो करते हो सबका साथ और सबका विकास की बात, लेकिन आप सबका साथ सबका विकास नहीं करते, बल्कि सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन केवल आप अपने 10% का विकास करते हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लड़ाई, योगी जी कहते हैं 80-20 की नहीं, ये लड़ाई 90 और 10 की है। और इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखा दिया जाएगा आपको किस तरीके से, लेकिन प्रजापति जी 10% को हराएगा। जिस समुदाय से आप आते हैं, एक सेकंड प्रदीप जी,
जिस समुदाय से आप आते हैं, प्रजापति समुदाय जो है, उनके उद्धार के लिए जब आपकी भी सरकार थी तब भी अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कर पाए सर। आज तक आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है प्रजापति समाज के लिए, कुम्हार समाज के लिए। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे सर आप, प्रजापति जी? जी राजीव जी बोलिए। जब माननीय नेताजी अखिलेश थे तो नेताजी ने सन 1993 में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा आपको दे रहा हूं, नेशनल मीडिया इस पर डिबेट नहीं करता। एक ज्वलंत मुद्दा यह है कि मेरे समाज से रिलेटेड है। एक उस दिन भी मुद्दा मैंने आपको बताया था, शिल्पकार कुम्हार का अनुसूचित जाति को लेकर के। दूसरा मुद्दा और मैं बता रहा हूँ प्रजापति समाज का, कि सन 1995 में जब नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नेताजी ने कुम्हार समाज के लिए पट्टे देने का काम किया था। पट्टे देने का मतलब है 1-2 बीघा जमीन उन्हें देने का काम किया था, जिससे ये कुम्हार समाज के लोग उससे मिट्टी लेकर के बर्तन बनाने का काम किया करते थे। लेकिन आज उन पट्टों पर, अधिकांश पट्टों पर उस 10% के लोगों का कब्जा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर ये इतने ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, प्रजापति समाज के विकास को चाहते हैं, तो उन 10% लोगों से वो पट्टे खाली करा दे, जिससे कि कुम्हार समाज को न्याय मिल सके, कुम्हार समाज के लिए बर्तन बनाने सके। 10वां एनिवर्सरी है, मुद्दा है। मेरे प्रजापति समाज के लोगों को माननीय नेताजी ने पट्टे देने का काम किया था, जमीन देने का काम किया था। आज उस जमीनों पर अभी मैं बता रहा हूँ कि एक बांधा की है, वहां पर 7 बीघा जमीन है। उस 7 बीघा जमीन पर मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने कब्जा कर रखा है। आखिर वो कब खाली होगी? कब लोगों को कुम्हार समाज को न्याय मिलेगा? उन पट्टों पर अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये जवाब दे कि किस तरीके से खाली होगी, कौन खाली करवाएगा उसको? प्रजापति साहब आज 10 इयर्स ऑफ मुद्रा स्कीम था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा हमने 52 करोड़ कोलैटरल फ्री लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर, कोलैटरल बिना कोलैटरल के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें हर तबके के समाज है, अपर कास्ट है, ओबीसी है, SC ST है, पिछड़े है, अल्पसंख्यक है, सबको इसका फैसिलिटी मिला। 33 लाख करोड़ हमने विकसित भारत की तरफ से बढ़ाया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अखिलेश यादव ने प्रश्न जरूर लगा दिया कि आप पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दे, पर क्या ये ठीक नहीं है? उसके बाद जन मन योजना, जो ट्राइबल SC ST को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जन मन, हजारों करोड़ जो मोदी साहब इसमें खर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये फैसिलिटीज ग्रास रूट में नहीं पहुंचा? आंकड़े तो कह रहे हैं कि पहुंच गया है। प्रजापति साहब। प्रदीप जी, ये इनके आंकड़े झूठे हैं, ये झूठे लोग हैं। 53 करोड़ की बात कर रहे हैं। इस 53 करोड़ में एक व्यक्ति से अगर 3 लोग भी जुड़े हुए हैं या 4 लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सोचिए आंकड़े केवल और केवल झूठ परोसने का काम करते हैं। ये जनधन योजना के अंतर्गत एक और राजीव जी और प्रदीप जी, आपको दुख नहीं होता, मुझे तो दुख होता है इस चीज को लेकर के कि इन्होंने जनधन योजना के अंदर देश के अंदर करोड़ों खाते खुलवाए। उन करोड़ों खातों में ये कह करके कि 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 15 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन मिनिमम बैलेंस के लिए उन लोगों से ना जाने कितनी वसूली इन्होंने की है। हर तिमाही का आंकड़ा निकल के आता है कि कभी 142 करोड़ इस तिमाही ले लिए, कभी 150 करोड़ इस तिमाही वसूली कर ली। ये कौन लोग हैं? ये अमीर लोग नहीं है, ये मालदार लोग नहीं है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस की समस्या किसी अमीर की नहीं होती, मिनिमम बैलेंस की समस्या किसी करोड़पति की नहीं होती। मिनिमम बैलेंस की समस्या उसकी होती है जो 2 जून की रोटी को परेशान है। मिनिमम बैलेंस की समस्या उसको होती है जो मनरेगा के अंतर्गत आ रहा है। मिनिमम बैलेंस की समस्या उसको होती है जो 300 रुपए की दिहाड़ी कार्य कर रहा है। तो जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवा करके इन्होंने अवैध वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इस पर कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देता इनका, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के पास जवाब हो तो बता दे कि मिनिमम बैलेंस का पिछली तिमाही तो कितनी कटौती की गई है। So that's your subject, बागरे साहब, प्लीज गो अहेड, बोलिए। सर देखिए, जनधन खाते आज गरीब के जब तक खाते नहीं थे तब तक उनके जो बेनिफिट था उसमें बिचौलिया मिडलमैन खाते थे। राजीव गांधी साहब ने फेमसली कहा था कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसे जमीन पे मिलते हैं,
तो इसके लिए जनधन खाते खुले। और मुझे तो ऐसा लगता है देश को आजाद होके 65 साल होने के बाद अपने को लोगों के बैंक अकाउंट खोले नहीं थे इन लोगों ने, तो पहले तो जनधन खाते खुले, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। सर मुद्रा योजना के जो आंकड़े हैं वो कोई मोदी सरकार के नहीं है, रिजर्व बैंक के है। तो प्रजापति जी जो है वो रिजर्व बैंक पे भी विश्वास नहीं है इनको, ना इनको बैंक पे विश्वास है। विश्वकर्मा योजना लाई उन्होंने, कितने लोगों ने, गरीब लोगों ने उसकी मदद ली। स्वनिधि योजना लाई, कितने गरीब लोगों ने मदद ली। आज देखिए 2008 से 13 के बीच में जो पूंजीपतियों को गलत तरीके से कर्जा बांटा गया, रघुराम राजन साहब ने ओपन इंटरव्यू में कहा था कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था को नीचे गिराने का काम यूपीए सरकार ने किया था। और आज 2014 से लेकर 2025 के बीच में गरीब लोगों को व्यवसाय करने के लिए, गरीब लोगों को एजुकेशन के लिए स्वनिधि योजना, जो रेडी पटरी वाले लोग थे सर उनको बैंक खड़ा नहीं करती थी, आज उनको सम्मान से लोन दिया जाता है। तो ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है। मुद्रा लोन के अंडर 55 करोड़ में आज 33 करोड़ ही है। ये सर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं तो आपको डैशबोर्ड प्रेजेंट कर दूंगा अगले डिबेट में। हर स्टेट वाइज मेरे पास मुद्रा लोन के फिगर्स है सर, और कितने सेक्टर्स में है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है सर, ये बैंक के आंकड़े हैं। लेट अस बी सीरियस, कुछ भी है ना रेटोरिक। लेकिन बागरे साहब चलते चलते आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है बागरे साहब, डोंट यू थिंक दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर? जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, आपको लगता नहीं है कि एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ज्यादा बढ़ गई है? जिस प्रकार अभी ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है और अभी वो कानून बन गया है, अगेन बीजेपी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अगेन डिवाइड बिटवीन इंडिया, अगेन कोई किसी को जिन्ना बुला रहा है, कोई किसी को कुछ और। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? we could have easily handled it much better. सर मुझे बताइए, कोई भी लॉ में अगर संशोधन करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? आज जेपीसी बनाते हैं, लोगों के सजेशन लेते हैं। हिंदू मुस्लिम सर अपोजिशन पार्टी को रंग देना चाहते हैं। हम तो एक ये लैंड रिफॉर्म के तहत मैं देखूंगा इसमें, जैसे एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स हुए थे 1956-55 में जो हुए थे, उस तरीके के लैंड रिफॉर्म्स है सर। इसके बाद अगर गरीब मुसलमान का फायदा होता है, आप सरकार को, अगर आपको आज लग रहा है कि सरकार ने गलत किया, सरकार को 4 साल दीजिए, आप खुद देखेंगे वक्फ के जो जमीन है वो गरीब मुसलमानों के लिए कितने अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। तो कैसा है सर, आज अगर 75 साल में गरीब मुसलमानों के लिए नई स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना कोई स्किलिंग, ना यतीम खाने खोले, तो इसके ऊपर आप सवाल नहीं पूछ रहे। आप ये पूछ रहे बीजेपी हिंदू। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सर दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, वी आर नॉट सेइंग इट्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। इट्स अ लैंड रिफॉर्म इशू। अरे बागरे साहब, नासर साहब थोड़ा ध्यान से सुने और प्रजापति जी आप भी सुने। तो बागरे साहब, यू एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर वेटिंग फॉर द वक्फ लैंड टू मेक स्कूल्स फॉर मुस्लिम्स? मुसलमानों के स्कूल सिर्फ वक्फ की जमीन से आएंगे? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? Isn't it the government's responsibility to make schools for all Muslims? I would like to respond. Yes, I am sure, because I am asking you. Why are you waiting for the वक्फ land? आप वक्फ लैंड से मुसलमानों के स्कूल बनाएंगे? सर क्या बोल रहे हैं सर? सर सुनिए, बोलिए। गवर्नमेंट बोलिए सर, बोलिए। doesn't make schools for any particular religion. It makes schools for every citizen of the country. So गवर्नमेंट के स्कूल में मुस्लिम बच्चा भी जा सकता है, हिंदू बच्चा भी जा सकता है, क्रिश्चियन। What I was saying that the वक्फ land which was supposed to be used for the benefit of poor Muslims, for their hospitals, for their education, ये सर वक्फ डीड में लिखा जाता है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। My point was that, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी। Right, so that's been made clear. Thank you very much. तो but you know, but जो exaggeration है ना बाकरे साहब, that is the problem। 50,000 स्कूल बन सकते थे, 500 स्टेट ऑफ हार्ट हॉस्पिटल बन जाए, इसमें सब लोग चौंक जाते हैं, क्या इतना संभव था? फिर जब रैशनली सैयद नासिर हुसैन जी पूछ रहे हैं कि आपने कितना बताओ, देन लोग सोचने लगते हैं कि आपने कितने बनाए। बट देन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आज आईआईएम्स डबल हुए, आईआईटीज डबल हुए, यूनिवर्सिटीज में हुआ है, रोड्स इतने हुए। So that's a different, that's a subject for a different debate. Everything is Bajaj, see, everything is created for the citizen of the country. Right. Government. I think Prajapati Saab has to say something about that. He is in the teaching profession. So Professor Saab कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ ठीक है नासर साहब, I know you have to go. Thank you very much for joining us. Great pleasure as always. Thank you so much. God bless you. जी प्रजापति साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। राजीव जी, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर गए थे जी, तो वहां जाकर के बोलते हैं कि हर दिन एक आईएएम बन रहा है, हर दिन एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर दिन एक आईटीआई बन रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो पूरी वीडियो आपने भी सुनी होगी।
और उसको जब ये कहा गया था तो शायद ट्रोल भी भारत की मीडिया द्वारा नहीं, भारत की पब्लिक द्वारा किया गया था, खूब ट्रोल किया गया था उस समय पर उस वीडियो के आधार पर। अब सोचिए कि अगर पर डे ये सब कुछ हो रहा है तो मैंने कहा ना कि बड़ा दुख होता है कि इस देश का बच्चा MBBS करने के लिए कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, चाइना, रूस और नेपाल जैसे देश जाता है, नेपाल जैसे देश जाता है। इसीलिए तो जाता है कि वहां पर फीस कम है, इसीलिए तो जाता है कि वहां पर बच्चे का जितना, यहाँ तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए में MBBS होगा। 1.5 करोड़ रुपए तो आज नॉर्मल सी बात हो गई। अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है बच्चा, वहां जा रहा है 20 30 40 50 लाख में निकल करके आ जा रहा है। यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने का विजन था, इसीलिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किसी ने किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समय पर हुआ 2012 से 17 के बीच में। ये वो अस्पताल नहीं चलवा पा रहे हैं। ये प्रवक्ता जी मुझे पता नहीं, शायद महाराष्ट्र से होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ना सीतापुर का अस्पताल ढंग से चलवा पा रहे, ना बदायूं का अस्पताल ढंग से चलवा पा रहे, ना शाहजहांपुर का अस्पताल आपका सही से चल पा रहा है। बदायूं में माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद थे, जो अखिलेश यादव जी के भाई हैं, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज खोला था, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उसमें दवाई नहीं दिलवा पा रहे। ये स्थिति है इनकी। तो अब कहने को तो ये कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। क्योंकि दिल्ली की बताइए क्या दुरुस्त बात है प्रजापति साहब, स्टेटमेंट दिया उन्होंने। प्रजापति साहब एक चीज है देना चाहिए जी, प्रजापति साहब एक चीज है, बागरे साहब एक सेकंड, ऑर्डर की क्या स्थिति थी, बागरे साहब एक सेकंड, जो माफिया डॉन था सर वो बहुत लंबा हो जाएगा। 11,000 एकड़ की जमीन हो गई थी सर, मालूम है सर। नो कंपनी वाज कमिंग टू इन्वेस्ट इन यूपी, व्हिच इज ट्रू। सर एक छोटी सी बात मैं सामने रखना चाह रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं सामने रखना चाह रहा हूं टू एंड द डिबेट। द फैक्ट इज आवर रिपोर्टर्स हैव गॉन एवरीवेयर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सर, हम जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे ना प्रजापति साहब और बागरे साहब, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा विरोध होगा, वो नहीं दिख रहा है सर। वेरी फ्रैंकली बहुत गरीब मुसलमान जो है, जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया गया मिनारा मस्जिद का, सर 80 मुसलमान परिवारों का उद्धार होने वाला है, और यही वक्फ बोर्ड हमारे बॉम्बे का, मुंबई का, वो कहता है इनको एविक्ट करो, ये हमारी जमीन है, इनको घर से बेघर करो। सर ये क्या है? मैं आपको बता रहा हूं प्रजापति साहब, सोचने वाली बात है, बागरे साहब सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए सरकार ने जो कुछ कहा है, जो कुछ उन्होंने क्लेम किया है, अगर सरकार उसके 50% 25% पे भी अगर मान लीजिए आप एक्ट करते हैं, यू वुड हैव सक्सीडेड। वेरी फ्रैंकली दैट इज माय व्यू। वेरी वेरी फ्रैंकली। एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा। जी बोलिए सर प्लीज। जमीन इनके पैरों जी सर, जमीन इनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। आज एक आम मुसलमान जो है, गरीब मुसलमान, कांग्रेस और समाजवादी का जो राजनीति है वो समझ गया है, इसलिए इनकी जमीन खिसक रही है। वक्फ बोर्ड की जो गलत जमीन ली है सर, वो तो सरकार वापस लेगी। नरेंद्र मोदी जी का आपको पता है निर्धार क्या है, और अमित भाई जैसे गृह मंत्री है सर, वो किसी की 1 इंच भी सरकार की जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। और सर सरकार की जमीन तो छोड़नी भी नहीं चाहिए, ऐसा तो मैं मानता हूं। अगर सरकार की जमीन जो है अवैध तरीके से उसको कब्जा किया गया है, वो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। का हिसाब होगा जी, हिसाब होना भी चाहिए। और अगर ये माना गया, जो गरीब पूरे गांव के गांव जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, होप दे गेट सम रिलीफ आउट ऑफ दिस, स्पेशली क्रिश्चियंस। सर द बिशप्स कॉन्फ्रेंस and the All India Christian Council, they've all openly supported the bill. उन्होंने कहा कि यार ये गड़बड़ है। क्या है? वेरी फ्रैंकली प्रजापति साहब और बागरे साहब, क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वक्फ बोर्ड में, 32 वक्फ बोर्ड हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, उनको ये लगा कि यार अब तो खुली छूट है, ग्रैब कर लो। ये हुआ था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड आई होप दैट स्टॉप्स। आई होप दैट स्टॉप्स। और जो प्रजापति साहब ने जो बात कही ना सर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स फार मोर इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा कि जो ओबीसी समाज है और जो पिछड़ा हुआ समाज है, सर मंडल कमीशन कब से आई हुई है सर? आई होप दे विल गेट जस्टिस।
मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ इंसाफ होगा और उनको वो सब मिलेगा जो प्रॉमिस किया गया। प्रधानमंत्री ओबीसी है, सबके साथ वो इंसाफ करेंगे। सर अभी तक तो नहीं हुआ सर, 11 साल हो गए। सर आप देखिए, ओबीसी महाराष्ट्र में मंत्रालय बनाने वाली बीजेपी है सर। ओबीसी समाज के कितने स्कीम चल रहे हैं सर। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप प्रजापति साहब, बोलिए। प्रजापति साहब आपने म्यूट पे कर दिया अपना फोन। सर आपने म्यूट पे कर दिया अपना फोन, जरा अनम्यूट कीजिए ना, बोलिए। प्रदीप जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रदीप जी बोलिए बोलिए। जो ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय समाज से आते थे जी। मैं उनकी पूजा करता हूं, उन्हें मानता हूं। उन्होंने मंडल कमीशन की पहली रिपोर्ट मानी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया नौकरियों में जी। दूसरे मानव संसाधन मंत्रालय संभालते थे, कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी, वो भी क्षत्रिय समाज से आते थे। मैं उनका भी सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने जो स्कूल में पढ़ाई में रिजर्वेशन लाने का काम किया। ये बारे वाह, ये कैसा हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है जो मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट नहीं मानने को तैयार है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता जी, इतना बता दीजिए, कांग्रेस ने और जनता दल की सरकार ने कम से कम एक ओबीसी की कम से कम मंडल कमीशन की 2 रिपोर्टें तो लागू कर दी। बाकी जो 14 रिपोर्टें हैं वो कब लागू होंगी मंडल कमीशन की? कब ओबीसी को न्याय मिलेगा? कब पिछड़ों को न्याय मिलेगा? ये बताने का समाज भाजपा के साथ खड़ा है। Wonderful. So we should have a separate discussion on that, sir. Bhagre Saab, thank you very much. और प्रजापति साहब, always a pleasure. Bhagre Saab, always a pleasure having you. And by the way, I must congratulate everybody, including Nasir Saab. It was a very civilized discussion. बहुत ही सभ्य डिस्कशन रहा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी बात कही। और जैसा कि इस चैनल पे हमारी परंपरा है, हम किसी को टोकते नहीं है, रोकते नहीं है सर। Very frankly speaking. Very informative. You have an open forum. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Informative. Lovely, beautiful. All of you came with a lot of research, and all of you spoke in a very well balanced and serious matter, because it's a very serious matter which is being discussed. This is not a frivolous matter, sir. Thank you, gentlemen. Prajapati Saab, namaskar. Namaskar. और Bhagre Saab, namaskar. Thank you. Jai Hind. Well, that was nice. That was a very. I didn't expect it to be so. How shall I put it? Very well balanced. I thought Nasir Saab would lose his cool. He didn't. So it was very nice. I mean, both sides put up the right questions. Yeah, but the only thing is that second is the past government performances. लेकिन प्रदीप जी, जो मिनारा मस्जिद का जो केस है, it's a test case. Let's be very clear. If the Waqf Board is going to act like that, now you yourself are giving an opportunity to everybody else to come along and interfere in your working. अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, आपका काम है गरीब मुसलमानों की आप मदद करें, इसके बजाय आप उनको घर से बेघर कर रहे हैं। मतलब कि I think that's sad. In any event, they've gone to the Supreme Court, but at the moment the High Court order has not been stayed. By the way, the High Court order holds. So I think MHADA will probably go ahead with the rehabilitation and so on and so forth. I hope justice prevails, and especially where housing is concerned, the basic necessities of life. That's right. The people get. You remember that place? That place is hell. It's hell on earth. And they wanted them to be evicted from there too. Every slum is really a hell on earth. That's right. How people live there, it's a different kind of story to tell. Absolutely. Impossible working conditions, impossible living conditions. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से. And we've been discussing Waqf now for a long time. Perhaps we should come back to Maharashtra tomorrow and we should talk about what's really happening over here. I'm missing all the color and confusion of Maharashtra. I think we should do that. But all the same, आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? अपना comment जरूर भेजें. Please do send me your comments. और वो घंटी तो उन्होंने बजा दी, जरा दोबारा बजा दीजिए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें. The fastest growing channel of the nation. Thank you. Thank you very much. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय.